हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 7 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 7 बेसिकली टॉक्स अबाउट नोटिस बाय ऑक्यूपायर बिफोर ही स्टार्ट्स यूजिंग एनी प्रेमाइस एज फैक्ट्री। तो फैक्ट्री शुरुआत करने से पहले ही कुछ इन्फॉर्मेशन ऑक्यूपायर को देनी होती है, चीफ इंस्पेक्टर को। व्हाट ऑल प्रोविजंस आर देयर अंडर सेक्शन 7 एंड इन द फैक्ट्रीज एक्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम इन दिस वीडियो। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। सेक्शन 7 बात करता है नोटिस बाय ऑक्यूपायर। So definitely this notice is to be sent by occupier, but to which authority and within how much time period and what information needs to be sent in this notice, that is being discussed under section 7. So herein occupier is under the mandate to inform chief inspector at least 15 days before he starts using any premise as the factory. तो दो तीन चीजें हैं which are required to be kept in mind is, first of all, this information needs to be sent by the occupier. He has to send this information in written form. Secondly, this information is to be sent to chief inspector. And next is at least 15 days before the occupier starts using any premise as factory. ठीक है, सो तीन चार बातें निकल के आती हैं which needs to be kept in mind. Occupier, chief inspector, the notice should be in written form and at least 15 days before the occupier starts using any premise as factory. And what all information is required, that I am going to show you next. Name and situation of the factory. तो factory का name and situation, similarly occupier name and address needs to be sent in this notice. Name and address of the owner of the premise or building. So there may be instances where the occupier and owner both are different because the occupier has obtained the premise on lease or rental basis, right? So in these two cases, occupier and owner will be different, and in this case, name and address of the owner of the premise or building where the factory has to be started, उसकी इंफॉर्मेशन भी इस नोटिस में जाएगी. Address where communication regarding factory to be sent. ठीक है. So the information with respect to nature of manufacturing process would also be sent in this notice itself. पर manufacturing process के लिए डिफाइन कर दिया गया है एग्जिस्टिंग और न्यू फैक्ट्रीज के लिए. एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस हैं उनको लास्ट 12 months की इंफॉर्मेशन देनी है विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, सम सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन देयर इन, तो लास्ट 12 months की इंफॉर्मेशन जाएगी. एंड फॉर न्यू फैक्ट्रीज विच आर येट टू बी स्टार्टेड, which kind of manufacturing process is to be carried on in such new factories, the information with respect to next 12 months has to be submitted in this notice. तो एग्जिस्टिंग के लिए पिछले 12 महीनों की जानकारी देनी है, और जो न्यू फैक्ट्रीज हैं फॉर अपकमिंग 12 months the nature of manufacturing process has to be disclosed. ठीक है. टोटल रेटेड हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड और टू बी इंस्टॉल्ड. तो इंस्टॉल्ड मींस एग्जिस्टिंग के लिए जो ऑलरेडी आपकी इंस्टॉल्ड है एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज के ऊपर अप्लाई हो गया, एंड टू बी इंस्टॉल्ड मींस न्यू फैक्ट्रीज के लिए कि कितनी हॉर्स पावर इंस्टॉल की जाएगी, राइट. नेम ऑफ द मैनेजर, number of workers to be employed, average number of workers employed per day during last 12 months in case of existing factories. So already in existence जो factories हैं उनको एक additional information देनी है कि last 12 months में how many workers on an average were employed in this factory, वो information भी देनी है. और कोई भी prescribed particulars जो भी mention करेगी गवर्नमेंट वो सब भी इसी नोटिस में जाएंगे, right. Apart from this, कुछ चीजें हमें सेक्शन 7 में और ध्यान रखनी है. बेसिकली सबसे पहले सेक्शन 7 नोटिस की इंफॉर्मेशन में क्या क्या जाएगा वो बताता है. उसके बाद ये बोलता है दी फैक्ट्रीज, बेसिकली दोज फैक्ट्रीज विच हैव कम अंडर द स्कोप ऑफ द एक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनके लिए वन टाइम कंप्लायंस बताया गया था कि एक्ट आने के बाद 1948 में जैसे ही आपके ऊपर अप्लाई हो जाए, आफ्टर इट इज बीन मेड इफेक्टिव विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर को ये सब इंफॉर्मेशन देनी थी. किसको? चीफ इंस्पेक्टर को. ठीक है. सो ये एक तरह का वन टाइम कंप्लायंस बता दिया गया था कि जब ये एक्ट कमेंस हुआ था एंड द फैक्ट्रीज विच हैव कम अंडर द स्कोप ऑफ द एक्ट फॉर द
फर्स्ट टाइम उनको विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट दिस इंफॉर्मेशन विच आई जस्ट डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड वो भेजनी थी चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, सेक्शन 7 में ऐसी भी फैक्ट्रीज के बारे में बात हुई है विच आर सीजनल इन नेचर या जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड ऑन फॉर लेस देन 180 वर्किंग डेज इन अ ईयर। तो 180 दिन से अगर आप कम डेज के लिए काम करते हैं, ऐसी फैक्ट्री है एंड दिस फैक्ट्री नाउ रिज्यूम्स वर्किंग, दोबारा से काम शुरू कर रही है, जब जब भी वो काम शुरू करेगी, ऐसी सीजनल फैक्ट्रीज हो गई। तो अगर जनवरी में काम किया, मे बी फरवरी में नहीं किया, फिर मार्च अप्रैल कर लिया, मे बी देन मई में नहीं किया, तो whenever you start resuming your work, again occupier under is mandate to send notice to the chief inspector with respect to information at least 30 days before the date of commencement of work. तो जब जब आप काम शुरू कर रहे हो तब तक आप ये नोटिस दोबारा से चीफ इंस्पेक्टर को देते रहो। ठीक है, तो सीजनल फैक्ट्रीज के ऊपर ये मैंडेट है, जब भी आपने काम रिज्यूम करना है आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। सो एटलीस्ट 30 days बिफोर द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क कीप chief inspector informed about the resumption of the work, right? Next section 7 में ये भी बोला गया है, if there is any appointment of new manager in the factory, occupier has to send this information in written form to the inspector of the area and the copy of the information will also be marked to the chief inspector. तो यहाँ पर इंस्पेक्टर का रोल भी आ गया। अभी तक अंडर सेक्शन 7 chief inspector was the prime authority. With respect to information on appointment of new manager, the information has to be submitted to the inspector with CC mark to chief inspector. ठीक है, within 7 days of taking charge. तो अगर आज की डेट में on 24th April he is taking the charge, तो 24 और 7 till 30 और 1st of May तक उसको ऑक्यूपायर को इंफॉर्मेशन देनी है that new manager has been appointed for this factory. ठीक है, so within 7 days of taking charge by the manager, the information is required to be sent to the inspector with copy mark to chief inspector. एक और important बात जो सेक्शन 7 में बोली गई है, in absence of any manager, अगर किसी भी फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए no manager is appointed, so in absence of any manager, any person found acting manager, whosoever is found acting as manager, कि जो उस फैक्ट्री को मैनेज करता हुआ दिखाई दे गया, एंड अगर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मैनेज करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा या मैनेजर भी कोई स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं किया, उस केस में we will assume that occupier is going to act as manager. ऑक्यूपायर को ही हम डीम्ड मैनेजर मानेंगे। ठीक है, तो ऑक्यूपायर डीम्ड मैनेजर कहलाएगा उस केस में जब या तो मैनेजर अपॉइंट नहीं किया गया या जिसको भी डेजिग्नेट किया गया था एज अ मैनेजर एक्ट करने के लिए बट ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब, देन इन दैट केस ऑक्यूपायर विल बी द डीम्ड मैनेजर एज पर सेक्शन 7. So these all are the specific provisions of section 7 under Factories Act 1948 which shall be kept in mind. That's it from my side. Thank you so much.